friends, welcome to CHSC science classes. आमे डिस्कस करिबा sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction is the production of offspring by fusion of male and female gamete. Male and female gamete रा fusion होगी जो offspring produce होगा and the total process is known as sexual reproduction. Here in sexual reproduction the involvement of two parents. Generally हमें जानिथिबा asexual reproduction रे कोन हुए गोटे single parent थारो new individual develop होई पारे, but in sexual reproduction there are two parents. One is male parent and other is female parent. Male parent तुम्हारा मेल गैमेट प्रोड्यूस करे और फीमेल पेरेंट रो फीमेल गैमेट. As we know, gametes are haploid. आमे जानछो gametes haploid. Haploid means they contain only a single set of chromosome. So by the fusion of two haploid gametes, again a diploid cell which is known as zygote is produced, and that zygote eventually develop into a new organism. So तुम्हारा कौन हुए मेल फीमेल गैमेट फ्यूजन हबो आउ जा फल कि तुम्हारा zygote develop हबो. So ये जो दुईटा मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते दुईटा पेरेंट थारो से माने फ्यूजन फल रे गोटे डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस करिवे, जो जाइगोट इवेंचुअली कोन करिवो तुमरो गोटे न्यू इंडिविजुअल को डेवलप हो. Here the sexual reproduction जदि हमें कंपेयर करिवा asexual reproduction संगरे हेले sexual reproduction हबो comparatively a slow process. आउ या भितरे सेveral steps रहबो आगो को हमें डिस्कस करिवा. So the sexual reproduction is a slow process. Generally reproduction कोन पे हुए, reproduction फल रे कोन हुए, reproduction रे कोन हुए तुमरो गोटे इंडिविजुअल और गोटे स्पीसीज रो मल्टीपल इंडिविजुअल डेवलप होई थाए, जा फल रे कि सेमन को नंबर इंक्रीज हुए. Sexual reproduction is same, increase in number of the species occurs, but in addition to the increase in the number of individual, other advantages are one is the advantages are one is sexual reproduction promotes genetic variation. जेतु sexual reproduction रे दुईटा parent रो involvement रहुची, so the offspring is the new genetic combination of both the parents. तो दुईटा parents रो जीन सब combine हे कि new offspring produce होची, जोटे कि तुम्हारा lead करूची variation. Next one is जेतु genetic variation होची, the offspring are more able to survive better than their parents. जेतु genetic variation फल कोन हुए तुम्हारा offspring गुडा कर life cycle रे किछटा resistant stages develop हे पारे, आउ ए resistant stages लगी कोन हुए offspring गुडा का parents थारो more able होंती adverse condition रे और some disease को resistance करके survive करियो. Next is sexual reproduction रो result रे seed formation हुए, and seed through dispersal avoid intraspecific
सो जेहेतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फल तुमर प्लांट रे सीड प्रोड्यूस होउची आउ थ्रू डिस्पर्सन सीड डिस्पर्सन फल कौन होउची तुमर गोटे पर्टिकुलर प्लांट रो सीड डिफरेंट लोकेशन रे जाइकी अगेन न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू प्लांट्स ग्रो होउची जहाँ फल कौन हुए तांकर इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन को अवॉइड करी हुए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे कौन हुए मेजर इवेंट्स आर मेयोसिस मेयोसिस रे कौन हुए तुमरो गोटे डिप्लॉयड सेल मेयोटिकली डिवाइड करिवो आउ फॉर्मेशन करिवो हैप्लॉयड गैमेट सो प्रथमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे मेयोसिस हो जा फल तुमरो होबो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड गैमेट्स then next is fertilization जोटा कि तुमरो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट then your embryo formation जहाँ फल तुमर कौन हम जाइगोट डेवलप्स into an embryo then development of cycle of plants have two phases. One is haploid gametophytic phase and other is diploid sporophytic phase. All groups of plant तांको पाखरे ए दुईटा डिस्टिंक्ट फेजेस रही थाए गोटे हला हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज आउ डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज और रिलेवेंट इंडिविजुअल को कह जाए हैप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सो ए दुई फेज रो सिग्निफिकेंस कोन तुमरा प्लांट रो हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज रे कौन हुए हैप्लॉयड गैमेटोफाइट undergo mitosis and produce male and female gamete. So gametophyte through gamete formation habo and the male and female gamete through fertilization they produce the diploid zygote here the gametophyte haploid so gametes are also haploid and they produce diploid zygote which develops into a diploid sporophyte and diploid sporophyte further undergo
First, the diploid sporophyte, after maturity, it undergo meiosis, which produce spores, and eventually the spores develop into haploid gametophyte through mitosis. So again, that gametophyte produce gamete further after fertilization produce zygote, and the cycle is continued. And all this life cycle of plant is known as alternation of generation. प्लांट रे कौन हुए गोटे हाप्लोइड गैमेटोफाइट गैमेट फॉर्मेशन करिवो गैमेट रो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट रो फर्टिलाइजेशन हे कि जाइगोट हबो जाइगोट डेवलप करिवो गोटे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट मेयोसिस हे कि स्पोर प्रोड्यूस करिवो स्पोर रो फिर हाप्लोइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हबो तो ये जो दुईटा फेज भितरे गोटे साइकिल रे प्लांट रो लाइफ साइकिल गति करथाय जहा को कहै जे हमर alternation of generation. And आमे जति flowering plants देखुछु normally all higher plants higher group of plants जति रोची they are dominated by the sporophytic phase. So आमे जो higher plants देखुछु और flowering plants they are dominated by sporophytic phase. So आमे कोइ परिबा आमे जति फ्लावरिंग प्लांट्स देखुछु छोटो बड़ जहा भी से सब होचंती गोटे गोटे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से प्लांट गुडा को the plant growth consists of two phases. One is vegetative phase and another is reproductive phase. तो reproductive phase रो certain period जाए जतबे जाए कि गोटे plant completely mature होची mature enough to reproduce सेते बेले जे तारो वेजिटेटिव ग्रोथ हुए वेजिटेटिव ग्रोथ हेले कोन हुए गोटे प्लांट रो नॉर्मली लेंथ तारो विड्थ नंबर्स ऑफ लीफ ए सब रे इंक्रीज होबो तापरे जेते बेले गोटे प्लांट फुल्ली मैच्योर हो जिवो आ से तारो रिप्रोडक्टिव फेज को फेज आड़ को जिवो रिप्रोडक्टिव फेज आ रिप्रोडक्टिव फेज रे कोन हुए मोर फ्लावरिंग प्लांट रे फ्लावर इंड्यूस हुए ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होबो इट इंड्यूसेस फ्लावर सो हमें देखिथिबा जते बेले गोटे गछटे सानो थिबो तापरे धीरे धीरे तार ब्रांचेस तार लीव्स बड़ होबो गछरा हाइट बढ़िबो डायमीटर बढ़िबो तापरे गोटे सर्टेन टाइम आसीबो जते बेले कि हमें देखिबा गछरे फ्लावरिंग स्टार्ट हुए जते बेले फ्लावरिंग स्टार्ट हुए हमें जानिबा जे प्लांट रो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ साइकिल आसी गला सो ये जो प्लांट रे फ्लावरिंग होची सेटा ही हमरो इंडिकेट करे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन flowering plant and we can say that the flower is the main structure for sexual reproduction. So flowering sexual reproduction. तो जति सेक्सुअल ऑर्गन्स रोची सेटा कोन होची फ्लावर रे ही फ्लावर ही ताको बियर करूची तो व्हाट इज फ्लावर we can say flower is a branch of shoot specially modified for the sexual reproduction. Flower होची तुमरो गोटे ब्रांच प्लांट रो जेमती अदर ब्रांचेस रोची सेमती गोटे पर्टिकुलर ब्रांच जोटे कि स्पेशली मॉडिफाई हेथाय तुमरो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जेते बेले तुमर कोन हुए फ्लोरल इनिशिएशन हबो ड्यूरिंग फ्लोरल इनिशिएशन व्हाट हैपेंस द shoot apex
प्लांट सूट एपेक्स जो रोची सेटा ट्रांसफॉर्म हो जिवो इनटू ए फ्लोरल एपेक्स during floral initiation. The shoot apex transformed into a floral apex. आउ कौन हुए जितेबले से फ्लोरल एपेक्स को ट्रांसफर हुए केमती हुए इट बिकम्स flattened or just like floral सो जितेबले तुमर फ्लोरल इनिशिएशन हम से कौन हुए सूट एपेक्स टा कन्वर्ट हम और ट्रांसफॉर्म हम तुमर फ्लोरल एपेक्स को जहाँ फल से कौन हुए ना तुम सूट एपेक्स टा फ्लैटेंड हो द एपेक्स ऑफ द सूट बिकम फ्लैटेंड और डिस्क लाइक एंड सेवरल फ्लोरल ऑर्गन्स विल डेवलप ये जो डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन था सेटा कौन हुए द डेवलपमेंट ऑन द फ्लोरल एपेक्स फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द सेंटर सपोज दुटा फ्लोरल एपेक्स है ताले तार फ्लोरल ऑर्गन गुड़ा को तुमरो जो अरेंज होंती सेटा हुए फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स सेंटर आउटसाइड आडू गोटे पर गोटे तुमरो ऑर्गन्स डेवलप होबो टुवर्ड्स सेंटर here the development of floral organs from outside towards center again आउटे कथा कि the flower always develop from the floral bud flower always develops हमें देखी थी जिते प्लांट रे फ्लावर हम फ्लावर हवा आगे कौन हुए फ्लावर बर्ड फॉर्मेशन हुए और फ्लावर बर्ड रु ही फ्लावर फॉर्मेशन हुए so again जानिबा the stuck like structure that hold the flower जोठी कि तुमरो सब इंडिविजुअल फ्लावर कौन हुए गोटे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर रे ही होल्ड होगी थाए से स्टॉक टा को कहा होची तुमरो पेडिसिल तो फ्लावर ऊपर जेतेबे हमें देखिबा फ्लावर तुमरो बॉन्ड हुए पेडिसिल pedicel is the structure that bear the flower आओ यार एपेक्स पेडिसिल रो एपेक्स जो थ्रू कि तुमरो फ्लोरल ऑर्गन गुडा को डेवलप हबो सेटा को कहा जाउची तुमरो रिसेप्टेकल और थैलमस सो स्टॉक लाइक पर्सन रहे फ्लावर रो सेटा पेडिसिल आउ एपेक्स ऑफ द
पेडिसिल जोटा कि फ्लैटेंड हो जाए जो तुम फ्लोरल ऑर्गन गुड़ाक अटैच होगी था सेटा हूँ थैलेमस और रिसेप्टेकल. Again, a typical flower consists of four floral parts. हमें यदि गोटे टिपिकल फ्लावर को ऑब्जर्व करवा तो देखिवा सिथरे कोन थे 4 फ्लोरल पार्ट्स थे. और ये पार्ट्स गुड़ा को कोन हे थे तुमरो आउटसाइड रो सेंटर आड़ को ग्रोथ हे थे. आउ ये जो पार्ट्स गुड़ा को अरेंज हे थे से अरेंजमेंट गोटे होल डिफरेंट होल्स रे हे थे. सो द floral parts form the floral holes. फ्लावर रो डिफरेंट पार्ट्स गुड़ा कथा होची सेटा मेनली गोटे फ्लावर चारटा फ्लोरल पार्ट कंसिस्ट करे. आउ ईच पार्ट तुमरो होल रे अरेंज हेथे जाको कहा होची फ्लोरल होल्स. एंड द फ्लोरल पार्ट्स आर calyx, corolla, androecium and जो चारटा फ्लोरल पार्ट namely calyx, corolla, androecium and gynoecium. First part is calyx. Calyx is the outermost hole of the flower. So calyx होची तुम्हारा सबठारो outermost hole. Each individual of calyx is known as sepals. Calyx रो प्रत्येक इंडिविजुअल को सेपल्स कहा जाए. केते गुडे सेपल मिसी की तुमरा कैलिक्स फॉर्मेशन करे जे. एठी जानिबा जे जदी सेपल्स गुडा को फ्रीली अरेंज्ड थिबे ताले कोन कह जाय आ जदी फ्यूज्ड हेकी थिलबे ताको कोन कह जाय. सो इफ द सेपल्स आर freely arranged, then these are said polycephalous. यदि होल रे प्रत्येक सेपल्स फ्रीली अरेंज हेथिबे ताले ताको कह जिवो polycephalous. और if these are fused together, then hemocephalous. Another thing, the calyx are usually green in color. आमी जदि फ्लावर रो calyx को ऑब्जर्व करिबा तो usually calyx होची green in color. आउ यार मेन फंक्शन हला it protects the floral bud. जते बेले फ्लावर रो इनिशिएटिव स्टेज थाए फ्लोरल बर्ड हिसाब रे तो से फ्लोरल बर्ड को कैलिक्स कवर करके और ताको प्रोटेक्ट करके रखी थाए. नेक्स्ट हमें जिबा कोरोला. द नेक्स्ट होल ऑफ द फ्लावर is corolla. Next to calyx रहला outermost hole, and then तापरे ता भीतर को रोचे हमरो corolla. आउ corolla रो each individual known as petals. Generally corolla are brightly colored
and various shapes. आमे जो फ्लावर देखुचु और फ्लावर रो मेन अट्रैक्टिव पर्सन जोटा हला तार पेटल्स कोरोला रे इच इंडिविजुअल को पेटल को जाए आ जो फ्लावर देखुचो फ्लावर कलर तार शेप तार अट्रैक्टिवनेस से सब जो आमे देखुचु सेटा हला तुमरो कोरोला द फ्लावर होल कोरोला जार इंडिविजुअल को पेटल्स को जाए पेटल्स गुड़ा को ब्राइटली कलर्ड थाए आ वेरियस शेप रो थाए यार मेन फंक्शन होची इट ड्यू टू इट्स ब्राइट कलर अट्रैक्टिव फॉर्म एंड शेप इट अट्रैक्ट्स द पॉलिनेटर्स ये पॉलिनेशन रे हेल्प करे इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन इठी भी जदि पेटल्स गुड़ाक फ्री थिबे दिस इज नोन एज पोलीपेटलस फ्लावर को कह पोलीपेटलस और जदि फ्यूज टुगेदर थिबे ताले गैमोपेटलस so ये है हमारा सेकेंड फ्लोरल हो टुगेदर द कैलिक्स एंड कोरोला आर नोन एज पेरियांथ ठीक है हमें जानिबा पेरियांथ ये पेरियांथ माने कैलिक्स प्लस कोरोला जदि हमें कोनोसी फ्लावर रे कैलिक्स और कोरोला को इंडिविजुअली डिस्टिंग्विश करि पारनु they are so compactly arranged that they cannot be distinguishable then say calyx plus corolla together they form the perianth and each individual of perianth is known as tepals हमें प्राय मोनोकोट्स रे देखि परबा तो पेरियांथ रो each इंडिविजुअल को टेपल्स को जाए रोचे एंड्रोसियम और गाइनोसियम ए दुईटा है हमर प्लांट रो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सो एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन each individual of androecium is known as stamen. Stamen है हमारा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेन्स गुड़ा को मिसिकी तुमरो फॉर्म करछथि द फ्लोरल हॉल एंड्रोसियम एंड ईच stamen is consist of a long slender filament terminated with anther. So stamen, filament plus anther. गोटे लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर थिबो जोटा को कोई फिलामेंट को जे आ तारो टिप रे तुमर थाउची एंथर द टिश्यू that connect anther to filament is known as connective. So जो फिलामेंट रे आंथर कनेक्ट हेकी थाउची
से कनेक्टिव जो टिश्यू थ्रो रे कनेक्ट होकी थाउची आंथरटा फिलामेंट रे ताकू कह जाउची हमर कनेक्टिव. Generally the anthers are bilobed. So this androecium produces the pollen grains. The androecium produces pollen grains which eventually develop into a male gamete. Next is your gynoecium. Gynoecium is the innermost hole of the flower. आमे जो चारटा होल देखी आउटर मोस्ट होल होची कैलिक्स तापर को कोरोला तापर को एंड्रोसियम आउ सबुठार सेंटर रे इनर मोस्ट होल होची तुमरो गाइनोसियम. आमे यार इंडिविजुअल पार्ट को कार्पेल कहि था आउ each carpel consists of a swollen flask shape ovary and a long stalk-like style which terminated the style is terminated to the stigma. So आमे गाइनोसियम रो each individual part को कार्पेल को जाउची आउ each carpel consists of an ovary and style and stigma. ये तीनटा मिसी की लोअर बासल पार्ट तार होची ओभारी जोटा स्वेलिन फ्लास्क शेप रो थाए तापरे ओभारी ऊपर को तुमरो गोटे स्टॉक लाइक स्टाइल रोची आ स्टाइल रो टिप टा तुमरो होची स्टिग्मा आ तुमरो गाइनोसियम होची तुमरो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. स्टिग्मा होची the receptive part of pollen grain. आमे आगो को जो डिस्कस करिया जानिबा कि जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ प्लांट होची आ रो सब टोटल स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो टोटल स्टेप का पर कोन होची सेथरे आमे जानि परिबा कि केमिति मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रो फ्यूजन होची आ से प्रोसेस रे कोन हुए तुमरो जो पोलन ग्रेन को रिसीव करे स्टिग्मा. नेक्स्ट द ओवरी गाइनोसियम रे जो ओवरी थाउची दैट कंटेन्स ओव्यूल और ए ओव्यूल तुमरो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को फर्दर जनरेट करता है. नेक्स्ट द ओव्यूल that attached to the ovary by placenta. ओव्यूल ओभारी संगे जो अटैच है कि थाए से अटैचमेंट जहाँ द्वारा ही थाए ताको प्लेसेंटा को जाए और the arrangement of ovule inside the ovary is known as placentation. Placentation होची
arrangement of ovule inside ovary. So the gynoecium is the female reproductive part of the plant. So जदि आमे flower longitudinal section को देखिबा, the ls of a typical flower shows the apex of the pedicel known as thalamus. Thalamus रो तुम्हारा बाकी floral holes attach होता है और floral organ attach होता है. The outermost organ जोड़े कि calyx तारा individual है ला sepals. तापरे ता भीतर को रोची तुम्हारा petals जोड़े petals उड़े को मिसी की तुम्हारा कोरचुंती corolla ये ला petal. तापरे ता next को रोची androecium. Androecium रे कौन रोची तुम्हारा गोटे long filament इटा गोटे filament type रे structure आउ ता terminated होची with the anther. Now the innermost is gynoecium. Gynoecium consists of the ovary, the style and stigma. Now ovary भितरे तुम रोची ovule. इटा हला गोटे typical flower रो longitudinal section representation. So हमें जब flower को देखिबा गोटे typical flower में तो चारिटा होल थाउची जोटे कि तुमरो कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम आउ ए जदि चारिटा होल गोटे फ्लावर रोची तो से फ्लावर को कहा जाउची कंप्लीट. The flower is known as complete when four holes, all the four holes are present. जदि गोटे फ्लावर ए चारिटा जाक फ्लोरल होल रोचंती ताले ताको कुहाउची complete. But in case any of these four holes is missing, जदि जे कोनोसी गोटे दुईटा होल जदि मिसिंग रोची, जे कोनोसी गोटे होल भी जदि मिसिंग रोची ताले से फ्लावर को कहा जाउची इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट माने any four hole is missing. Either calyx or corolla or androecium or gynoecium किछि भी जदि गोटे भी मिसिंग हे जाउची ताले हमें फ्लावर को कहू इनकम्प्लीट. Again incomplete flower may be perfect or imperfect. तो हमें केतेबेले फ्लावर को परफेक्ट कहि थाउ when the two reproductive holes present जदि फ्लावर रे एंड्रोसियम और गाइनोसियम जोटा है फ्लावर रो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव हॉर्स. तो जदि दुईटा जाक रिप्रोडक्टिव होल प्रेजेंट अच्छी फ्लावर रे ताहले आमे से फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर कहि था. सेकंड वन इज imperfect. imperfect केतेबेले हुए जदि ए दुईटा रिप्रोडक्टिव होल भितरु कोनसे गोटे भी जदि मिसिंग थिबो, जदि प्लांट रे आइदर गोटे सिंगल एंड्रोसियम थिबो और खाली गाइनोसियम थिबो. That means any one of the reproductive hole missing. So perfect flower रे दुईटा रिप्रोडक्टिव होल थाउची सेति में ताकू हमें कहि परिबा भी another name for perfect flower is bisexual flower. जेतु दुईटा जाक सेक्स ऑर्गन तुमरो रहउची और hermaphrodite. आउ imperfect को हमें कहि परिबा यूनिसेक्सुअल जेतु गोटे सिंगल
reproductive organ rohuchi. Now the unisexual flower may be staminate or pistillate. Again unisexual flower रे कौन होची either कौन सी गोटे सेक्स ऑर्गन रोची. सो जदि गोटे imperfect flower रे तुमरो खाली male reproductive part रहला और only stamens are present, then the flower is known as staminate flower. Staminate flower रे कौन हुए only stamen और androecium present. Staminate androecium present और gynoecium missing थाउची. सिमती pistillate रे gynoecium present रोची और androecium missing थाउची. staminate रे कौन हुए तुम्हारा gynoecium missing था. Again जदि कौनसी फ्लावर रे कौन हुए sometimes both the essential hole means both the reproductive holes androecium and gynoecium are absent. जदि फ्लावर रे both androecium and gynoecium are absent, then this flower is known as neuter. So neuter flower means सेथिरे both androecium और gynoecium missing थिबे. Again आमे बाइसेक्सुअल फ्लावर देखिले यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखिले. एबे देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर. जदि गोटे प्लांट रे बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर रोची ताहले बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर born on the same plant. जदि गोटे सिंगल प्लांट रे बोथ मेल और फीमेल फ्लावर होची ताले से प्लांट को हमें कहबा मोनोइसिस. सो जदि गोटे सिंगल प्लांट रे मोनोइसिस ने गोटे सिंगल प्लांट रे तुमरो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर बर्न करिवे. फॉर एग्जांपल तुमरो सेज क्यूकरबिटर. क्यूकरबिटर रे कौन हुए गोटे सिंगल प्लांट रे मेल फ्लावर भी हुए और फीमेल फ्लावर भी हुए. तो सेमती केस रे ए प्लांट को हमें कहथो मोनोइसिस. एंड जदि मेल एंड फीमेल फ्लावर तुमरो डिफरेंट प्लांट रे बर्न हेबे, दैट मीन्स गोटे प्लांट खाली मेल फ्लावर बियर करिवो आ गोटे प्लांट खाली फीमेल फ्लावर बियर करिवो ताले ताकू कहजिबो हमरो डायोसियस प्लांट. दैट मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर different plants. इथे कौन हुए गोटेटा थाए मेल प्लांट जे कि मेल फ्लावर बियर करे आ गोटेटा हला तुमरो फीमेल प्लांट जे फीमेल फ्लावर बन हुए. तो से भलिया प्लांट केस रे हमें कहूछु ताको डायोसियस. फॉर एग्जांपल तुमरो पपाया
पपाया रे देखिथिबो गोटे मेल प्लांट जे खाली मेल फ्लावर बियर करे आ गोटे फीमेल प्लांट जो फीमेल फ्लावर बर्न हुए। समटाइम्स कौन हुए बोथ इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट फ्लावर्स बर्न ऑन ए सिंगल प्लांट। किछिटा प्लांट अच्छी जो कि बहुत परफेक्ट परफेक्ट माने कौन तुमर जो कि तुमर एसेंशियल होल्स all male reproductive and female reproductive both are present and imperfect कौन होची तुम्हारा any one of the essential role either male part or female part present। तो जदि गोटे प्लांट रे both perfect flower और imperfect flower develop होची ताले से प्लांट को कहा जाउची polygamous। polygamous means both perfect and imperfect flower। So both perfect और imperfect जदि बर्न होचंती ताले से प्लांट को कहा होची polygamous। For example mango। Now generally flower different colors different form different shape variety of flowers रही थाए मात्र सब फ्लावर रो मेन एम रोची तुमरो sexual reproduction को। So in all flowering plant the sexual structure or sexual organ may be different in form of color size shape or anything else but the process of sexual reproduction in plants are similar। So next hame discuss kariba steps of the sexual reproduction in flowering plant।